एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है LADC। जो ये मेनली टर्म है, ये टर्म यूज़ होती है उन लोगों के लिए जिनको जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है, बट दे नीड सम लीगल गाइडेंस टू प्रोसीड देयर केस वॉट एवर हैपन टू देम बिकॉज ऑफ विच दे फाइल केसेस। सो उस केसेस में बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल इतना नहीं होता है अमाउंट की वो किसी लॉयर को हायर कर पाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एड मिल दी जाती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील कह लीजिए, एडवोकेट कह लीजिए, अपॉइंट किया जाता है, जिसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट की तरफ से पेड की जाती है और वो आपकी तरफ से फाइट करता है। हमारा टॉपिक LADC का आज है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे एडवोकेट्स हम आजकल देख रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इवन इन आर कोर्ट there is a hunger strike running right now from last 8 days I think. Yes, yeah, it's 8 days. तो आज हमारे साथ भरत भूषण सर हैं जो कि हरियाणा हाई कोर्ट एंड पंजाब हाई कोर्ट में डील करते हैं in the cases. So he will explain you further why the striking is going on and what is the basic topic behind this. First of all, I thanks to your viewers. You are welcome for that. You are doing pro bono and it's a good question because litigants are suffering. Courts are not functional and due to the hunger strike, due to the protest or agitation of the advocates, we people are on the roads. We are demanding rollback of LADC. LADC is Legal Aids Defense Council. They are paid by the government, they are the salaried one and getting more and more cases from the preference by the government or so it is affecting our right. We people are also defense counsel practicing privately. We have no support. Just we are working for the betterment and for the welfare and for the justice of the litigants. So what happened? Government introduced LADC and some people were salaried, recruited or salaried now. So what happens? We people, we are the advocates from the Punjab and Haryana High Court. Today you see that High Court is also on abstaining of the work or suspension of the work. They are not functioning today. And earlier also 2 to 3 times they were on the hunger strike. So I say that it is against the welfare, not to us, but the future advocates also. Yes. Future advocates' future will be spoiled because we have practicing since 20 years, 15 years, so we have links and we have cases. But those who are coming newly in this profession, interns and those who are started their career recently, they will not get any case. So question is now, how will they survive? How will the work come to them? So that's why we are fighting and we are asking to the government, we are requesting to the government to review, to roll back, because it is not, but all the fraternity of the advocates will be spoiled. The government must consider the things when they executed or when they introduced some types of policies. First they have to consult to those who are affected from them, like advocates. They have never consulted to our bar councils, they have never consulted to our district bar associations or the senior advocates who have experience. Secondly, मैं इसमें एक बात और कह दूं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के समेत सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट या हाई कोर्ट सभी बंद है और लगभग आज 2-3 सप्ताह से हमारे पंजाब के कई जिलों की अधिवक्ताओं में स्ट्राइक की हुई है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पर कान पे जू नहीं रह रही गवर्नमेंट की। हम क्या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं। अब दूसरे इन्होंने कहा जी ये लीगल एड बहुत दिन से चली आ रही, 1995 से चली आ रही है और जो सच कहा आपने कि जो कमज़ोर हैं एडवोकेट प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि आपको बता दूं प्राइवेट एडवोकेट्स भी फ्री में काम करते हैं, हम हर एक से चार्ज नहीं करते। मैं खुद 70% केस फ्री करता हूँ। तो इसमें कोई सरकार के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवोकेट तो नोबल प्रोफेशन है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है एंड वी जब हम संविधान की कसम खाते हैं, हम जब पहली बार अपना बैंड लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है,
हमारे लिए पैसा कमाने के लिए इस प्रोफेशन में न्याय, हम यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए आए और न्याय दिलाने के योद्धा हैं। हमें कहते हैं न्याय योद्धा। थर्डली मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कहा ये लिटिगेंट्स के फेवर में है या मुवक्किल के फेवर में, नहीं। अब ये बताइए कि सरकार ने जो लोग लगाए हैं उनका कोई टेस्ट किया? नहीं किया। दूसरा, इधर भी सरकारी उधर भी सरकारी, जज भी सरकारी, कैसे न्याय होगा भाई? जो सामने सरकारी पहले थे, जिन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता, सरकारी वकील कहा जाता, अब ये जो दूसरे हैं ये भी तो सरकारी हो गए जब तनख्वाह मिल गई तो इनको। तो इससे क्या होगा? मुवक्किल का नुकसान होगा। जो जेल में कैदी पड़े हैं, बंदी पड़े हैं, उनको सरकार और सड़ा देगी, उससे उनको न्याय नहीं मिलने वाला और उनकी सज़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि इन लोगों का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। इनको सरकार ने अपने भाई भतीजेवाद उठा के वो लगाए हैं, दबा के उन लोगों को लगाया है। उनमें से मैं कहता हूँ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी कोर्ट में नहीं आए, जिनका एक केस नहीं है, वो लोग भी सिफारसी लग गई। और सिफारसी लोग कभी न्याय नहीं दिलाते। उसे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, कोई मर जाए मर जाए, कोई जेल में सड़ जाए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन लोगों का होगा जो कैदी, हवालाती और जो ये परेशान लोग घूम रहे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं पैसा लेता हूँ, मैं प्राइवेट अधिवक्ता हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ आपको केस का सही चलाने के लिए। उनको क्या जिम्मेदारी? वो सरकार तनख्वाह लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धक्केशाही हुई है, गलत कानून बनाया गया है, जिसका आज पंजाब और हरियाणा और जो हमारा पूरा जिला है पंचकुला, हम भी लोग, सभी लोग आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे भी और वैसे भी एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क बैठे हैं। और जब तक सरकार इस केस को यानी कि सही तरीका से इनको रिव्यू नहीं करेगी, रिकन्सीडर नहीं करेगी, रिस्टोर नहीं करेगी, वही लीगल एड पे नहीं आएगी, जब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। ये बता देते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकाने वाले हैं। क्योंकि हम लोग अगर खुद झुक गए तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम अपने न्याय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों, ये बच्ची कल को लॉ करके आएगी, ग्रेजुएट होती है, इसके पास क्या होगा? आप रोजगार देने की जगह रोजगार खोंच रहे, छीन रहे हो, उनको गला दबाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये मंजूर नहीं हमें। इसको रोल बैक करो और सही तरीका से पॉलिसी बनाई जाए। और ऐसे सरकारी लोगों को तनख्वाह देके आप उनका कल्याण नहीं कर रहे हो, कैदियों का, हवालातियों का या मुवक्किल का, आप उनको कहीं ना कहीं न्याय से वंचित कर रहे हो। तो सर ने एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पिक किया है आज डिस्कशन के लिए, जिसमें वी रियली थिंक कि आप भी इस पर एक बार सोचेंगे और आप हम सबके साथ जुड़ेंगे। लॉयर्स को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज पब्लिक हैंड इन हैंड चलती है। इवन लॉयर्स आर पब्लिक एज वेल ऑफ दिस इंडिया। एंड इसमें जो मेन, ठीक है, लॉयर्स को भी इसमें बिजनेस डीलिंग में बहुत इश्यूज आएंगे क्योंकि क्लाइंट नहीं आ पाएगा, बट द मेन थिंग इज़ कि जो उस हैंड पे क्लाइंट है वो ज़्यादा सफ़र करेगा क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे द क्लाइंट होप्स फॉर जस्टिस, एंड इफ़ we are not providing that then there is a question of thinking. So thank you for watching this video and do support us and share this video. Bye bye.